Good morning, students. Today we will be starting off with a new chapter. The name of the chapter is On the Face of It. This chapter is written by Suzanne Hill. While looking at the title of the chapter itself, we come to a conclusion that the chapter is discussing about something related to somebody's face. क्योंकि टाइटल ये बोल रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, उसके चेहरे पर क्या, क्यों, किस लिए. लॉट्स ऑफ मेनी क्वेश्चंस अराइजेस इन आवर माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ टॉक अबाउट द ऑथर. हमारे जो ऑथर हैं थोड़ा सा उनके बारे में बातचीत करते हैं. ऑथर है हमारे सुजैन हिल. सुजैन हिल वॉज बोर्न इन 1942. बहुत पुराने राइटर है. ही इज बेसिकली नोन एज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, चिल्ड्रंस राइटर एंड प्ले राइटर. इन तीन चीज़ों में जो है बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया. नॉवेल्स जो थी इनकी, दे आर रिटन इन अ डिस्क्रिप्टिव गॉथिक स्टाइल. गॉथिक स्टाइल एक स्टाइल होता है नॉवेल लिखने का, वो तुम्हारे रिलेटेड नहीं है कोई चीज़. स्पेशली आवर राइटर इज वेरी मच फैंटास्टिक राइटर अबाउट गोस्ट स्टोरीज एंड ऑल. हाँ, भूतिया कहानी बड़े अच्छे से लिखते हैं. उनमें से बेस्ट है द वुमन इन ब्लैक, which was published in 1983. It is a traditional English ghost story which relies on suspense and atmosphere to create its impact. मतलब ओवर एंड ऑल हम बात करें तो जो इनकी स्टोरीज हैं अट्रैक्टिव होती हैं, डे टू डे लाइफ से इफेक्ट करती हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कहीं ना कहीं उनमें कुछ जुड़ा हुआ होता है. ओवरऑल बहुत बढ़िया तरीके से द वे ऑफ एक्सप्रेशन is very logical. So now our chapter on the face of it. It is basically we are getting this chapter in a form of story, something like that. But basically on the face of it is a play featuring two important people. कौन है वो? A small boy mentioned in the story. Second है lamb. They both suffer from some disappointment in life. Something wrong had happened with them. वो something wrong क्या था? Our Mr. Lamb जो है, he has a 10 leg. That is why people discard him. उसको पसंद नहीं करते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं उसका. लैम्बी लैम, लंगड़ा लैम, इस तरह से. और डेरी जो है, डेरी इज अ बॉय who had a half burn face with acid. उसका जो आधा फेस है वो क्या है? एसिड से जला. Now basically if we form a platform of the story तो हमें क्या निकल के आता है कि this is a play featuring an old man Mr. Lamb and a small boy named Derry. So क्या है, हमारे दो important फीचर्स जो हैं यहाँ निकल के आते हैं. एक तो है मिस्टर लैम्ब हमारे, और दूसरा है हमारा छोटा बच्चा डेरी. सो डेरी सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स. हिज हाफ फेस वॉज बर्न, सो बहुत बुरा उसको फील होता था. ही गेट्स वन साइडेड ऑफ हिज फेस बर्न विद एन एसिड. ही ऑलवेज रिमेन्स विड्रॉ and defeat. Every time उसको लगता है कि people don't like me, they hate my face, they hate my presence, they are scared of me. So these kind of feelings were always present in the mind and soul of Derry. अब he doesn't like to be near people, but he can't stand their uncharitable looks and remarks. It's not like that he hates company, but the thing is, because of his burnt face, the remarks which he is getting, he never liked them.
Now, Mr. Lamb himself has a 10 leg. He has a very positive attitude towards life and as well as people and society. He shows the right way of judging man, judging human being, judging matters, judging life to the young Derry. So, in spite of their age difference, both of them in a single meeting, they come very close to each other. Now, this story also raises a question. It raises the questions that if a person is physically hampered or something bad had happened with him, कुछ तो भी खराब हो गया उसके साथ, हाथ खराब है, पैर खराब है, आँख खराब है, कहीं अपीयरेंस उसका सुंदर नहीं है, सो क्या दैट कुड बी अ रीजन टू जज एनीवन? क्या वाकई में हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना चाहिए लोगों को? सी, द ब्यूटी लाइज इनसाइड द हार्ट एंड सोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. नाउ दीज आर द मॉरल्स व्हिच आवर स्टोरी इज टॉकिंग अबाउट. एक और चीज के बारे में बात कर रहा है स्टोरी में राइटर, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. सी, human life is full of miseries only. Life is not simple, life is not easy. So whenever we start approaching or we are like starting our lives since childhood, or like childhood में भी हम बात करें तो till 4-5 years things are okay. But afterwards when you start struggle in life, so it never it's never, life is never of everybody's cup of tea. You have to struggle. But if we keep positive attitude, things will go easier to us. And if we will keep a negative approach towards everything, तो क्या होगा? Our life will also become negative. We will start watching people, matter, things with a wrong perspective. So because everything that looks black is not gold, it could be a raw diamond. तो हमारा जिंदगी को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है that has been described by Hill in On the Face of It. एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में सुजैन बात करना चाह रही है यहाँ कि we must enjoy life. Apart from its negative approach, apart from the problem, apart from the misery, we must learn to live happy. Big C, if any problem has to come, it will come. We cannot stop that. हम रोक नहीं सकते ना अगर कोई problem आ रही है तो. But if we approach that problem in a positive manner, optimistic way में अगर हम उस चीज़ को accept करेंगे तो हमारे लिए उस प्रॉब्लम से निकल जाना विल बी ईजियर. आसान हो जाएगा टू कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. बट एंड इफ वी विल कीप थिंकिंग यार ऐसे नहीं हुआ, दिस नहीं हुआ, दैट नहीं हुआ, इट द थिंग्स मस्ट हैव गॉन इन राइट ट्रैक. अभी तुम लोग सोच सकते हो क्या यार हमारे 12th में लॉकडाउन होना था, कितना सिलेबस प्रोसीड हो जाता, क्या क्या हो जाता, अभी हम कितना परसेंटेज कवर कर लेते, दिस एंड दैट. अगर खाली बैठ के सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा. इफ वी विल सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू सेल्फ स्टडी ऑल द थिंग्स यू आर गेटिंग. सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स यू आर गेटिंग. सो आपको बैठ के सेल्फ स्टडी करने का बहुत अच्छा टाइम है. सो द स्टूडेंट्स हु आर यूटिलाइजिंग दिस टाइम, डेफिनेटली दे विल बी बेनिफिटेड इन देयर बोर्ड एग्जाम. सो हमें हर चीज़ को कैसे देखना चाहिए? पॉजिटिव वे में देखना चाहिए. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डेरी यहाँ पे लैम यहाँ पे बात कर रहा है दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. क्या नाम है उनका, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मस्ट लिव इन अ ब्रदरहुड फॉर्म. सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो सिखा रहा है क्योंकि उसका एटीट्यूड लाइफ के लिए पॉजिटिव है. ऑन द अदर हैंड
इफ वी गो टू डेरी, मोस्ट नेगेटिव पर्सन, उसका एटीट्यूड हर चीज को लेकर नेगेटिव है। मेरे गंदे चेहरे से लोग डरते हैं, वो कमेंट पास करते हैं, मुझे सुनता है तो वो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, मतलब बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चलती है। इवन उसकी जो मदर हैं उनके लिए भी वो यही बोलता है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, आई एम हिज सन, शी हैज टू लव मी, दैट इज वाई ओनली शी लव्स मी। सो इवन इन हिज इस सोच से वो अपनी माँ के प्यार को भी महसूस नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ भी वो उसका वो जो हैप्पी मोमेंट है स्पेंड बिटवीन अ मदर एंड अ सन, वो भी जो है उसको इंजॉय नहीं कर पा रहा है। और फॉर एवरीथिंग ही हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड। और लैम्ब जो है वो मदद करता है पूरी तरह से उसकी नेगेटिविटी से घुमाकर उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आए। सो दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन टू अ चैप्टर। इन सब चीज़ों के बारे में हमारी स्टोरी है जो उसमें बात करती है। नाउ एज वी प्रोसीड टुवर्ड्स द टू प्रोसीड फर्दर, एक और चीज़ है जिसके बारे में थोड़ी चिट-चैट करते हैं हम लोग, वो है रिलेवेंस ऑफ द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट। द प्ले विच वी आर रीडिंग, द स्टोरी विच वी आर रीडिंग, उसका जो टाइटल दिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट, वो कितना रिलेवेंट है, कितना सही है। देखो, द टाइटल ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, इट सीम्स somewhat odd and awkward while going to the title first time, थोड़ा सा अजीब हमको लगता है। Sometimes people may be quite different from what they appear to be at first. होता है ना ऐसे, we must not judge a book by its cover. अंदर क्या है, those things are appear। तो पहली बार जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कुछ ऑकवर्डनेस हमको नजर आना लाजमी है, कोई मसला नहीं है उसमें। द टाइटल इज बेस्ड व्हाट दे अपीयर टू बी एट फर्स्ट। अब यहाँ जो हमारा टाइटल है, इट इज बेस्ड ऑन दिस थॉट ओनली। कैसे? मिस्टर लैम्ब अपीयर्स टू बी अ वेरी सीक्रेटिव, मिस्टीरियस, लोनली, लेम ओल्ड मैन हु लिव्स ऑल अलोन। अकेला रहता है, बुढ़ा, टूटी हुई टांग है उसकी, बहुत मिस्टीरियसली बिहेव करता है, अकेला रहता है। बट इन द सेम स्टोरी ही अपीयर्स टू बी वेरी जेंटल, काइंड, जेनरस एंड कंसिडरेट पर्सन who helps Derry in overcoming his fears, his obstacles, his complexes. अब इनिशियली बिगिनिंग में हम देखते हैं तो हमारा कुछ और सोच है लैम्ब के लिए, लेकिन when we proceed further into the chapter तो हम क्या देखते हैं कि जो दिखाई दे रहे हैं मिस्टर लैम्ब वैसे नहीं है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो उनके अंदर हैं। देखो, it is in a similar way, Derry seems to be a very complex ridden boy who hates people because of his own ugly face. वो सारी दुनिया से नफरत करता है क्योंकि उसका चेहरा खराब है। He is withdrawn and defiant. Later on, but when he started mingling up with Mr. Lamb, तो एक नया चेहरा जो है उसका हमको सामने आता है। वो क्या है? Derry undergoes a metamorphosis. He understands that the true meaning of life is to live to the fullest. ये कौन समझाता है उसको? लैम्ब समझाते हैं। As the story moves further and picks up tempo, we understand each of the character better. जैसे जैसे बढ़ रही है स्टोरी हमारी आगे, वैसे वैसे क्या है, हम जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें, उन के बारे में हमें
और ज़्यादा पढ़ने को पता उनके बारे में और नई चीज़ें हैं जो खुल के हमारे सामने आती हैं. So thus the author has quite appropriately titled her play On the Face of It. इसीलिए क्या एक्सप्रेशंस है, क्या फीलिंग्स हैं, चेहरे पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर रही हैं ऑथर. इसीलिए उन्होंने यहाँ टाइटल का नाम दिया है क्या, ऑन द फेस ऑफ इट. सो ये तो रिलेवेंस हो गई हमारी इसकी, हमारे टाइटल की ये रिलेवेंस है. नाउ let us have a look on the main points of the story जो कि हम आगे पढ़ेंगे. देखो, Derry climbs over the garden wall and enter Mr. Lamb's garden. Mr. Lamb offers to give crab apple to Derry. Derry gets panically but Mr. Lamb comforts him. बहुत आराम से उसको बोलते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से लो. Derry says that people fear him because of his ugly face. शक्ल बहुत खराब है इसलिए लोग नफरत करते हैं. On the side of his face got burnt as a bottle of acid fell over it. Derry suffers from a complex. He remains lonely and avoid people. He can't stand the uncharitable remark of the people aimed at him. अब लोग अगर कोई भी रिमार्क करते हैं वो सिंपैथी में करते हैं, वो भी उसको नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर. ये सारी जो चीज़ें हैं उसको नहीं चाहिए. ही मस्ट, अब लैम जो है ही एडवाइजेज हिम दैट ही कांट लुक अप हिमसेल्फ इन अ रूम फॉर एवर. ही मस्ट शट हिज ईयर्स टू स्टॉप लिसनिंग टू व्हाट अदर्स से ऑफ हिम. नाउ मिस्टर लैम शोज हिम द वे. डेरी हैज 2 eyes, ears, legs, means physically he is fit. वो समझाते हैं उसको. He has got up a tongue and has a brain. तो वो सब कुछ कर सकता है, शक्ल पे क्यों जा रहा है अपनी. Mr. Lamb himself has a 10 leg, but he doesn't bother about it. He takes life as it comes. He doesn't mind children calling him Lamby Lamb. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे उन्हें ऐसे बुलाते हैं. Terry should follow him. If he works hard, he can be like others. He can even outshine the rest of the people. उनसे कहीं अच्छा कर सकता है वो. Derry goes back to home and he promises Mr. Lamb to come back. Derry's mother stopped him for going to meet Mr. Lamb. Now when Derry comes, Mr. Lamb is on the ladder with the stick. The ladder slips and with ghost down Mr. Lamb and he dies there only. Derry was in a state of shock. He cries badly. और क्या बोलता है? Lamby Lamb, I did come back. As this was the promise made by our Derry to Mr. Lamb. ये promise था उसका Derry का Mr. Lamb से कि मैं जो हूँ मैं वापस ज़रूर आऊँगा लौट के. Now I want you all to open your books and I am just telling you the hard words which are used in the chapter page wise. Our first page of On the Face of It is 56, page number 56. पेज नंबर 56 पे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे दैट कुड बी कंसिडर्ड हार्ड वर्ड्स. सबसे पहला है विड्रॉन. विड्रॉन क्या बोल रहा है हमारा? विड्रॉन हमारा बोल रहा है लॉस टू हिमसेल्फ. कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके जो हम खो चुके हैं या अलग से अपने आप में खोए हुए हैं. सेकेंड जो आएगा वो आएगा डिफेंट. DEFAINT. डिफेंट बता रहा है कि हु ओपनली डिसोबेज, मतलब ऐसा इंसान जो पर्पसली बोलता है मैं नहीं कर सकता ये काम, खुले में जो है वो बात को नहीं मानता है.
नेक्स्ट इसमें आएगा आपका ओकेजनल। ओकेजनल क्या बता रहा है? ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका इसमें रस्टलिंग, RUSTLING। रस्टलिंग बता रहा है साउंड ऑफ लीव्स, आवाज, पत्तों की जो आवाज है वो। नेक्स्ट आपका बता रहा है टेंटेटिवली। टेंटेटिवली क्या बता रहा है? मतलब कॉशियसली। वैसे टेंटेटिवली का मतलब हम ये भी मानते हैं कि लगभग उस वक्त तक शुरू हो जाएगा, लगभग से एट द टेंटेटिव डेट इज दैट ओनली। लेकिन यहाँ पर टेंटेटिवली का मतलब है वेरी कॉशियसली, बहुत सतर्क होके जब कोई काम किया जाता है तो। नेक्स्ट है स्क्रीन, SCREEN। स्क्रीन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा शेल्टर टू हाइड, किसी चीज की ओट में आ जाता है ना, दैट वन। नेक्स्ट आपको मिलेगा स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड क्या बोल रहा है? सडनली सरप्राइज्ड, ना, अचानक से जब हम चौंक जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ है माइंड, MIND। ये क्या बता रहा है? यहाँ माइंड है, दिमाग नहीं है। यहाँ माइंड का मतलब है बी केयरफुल, बहुत ध्यान से ना। इसके बाद है आपका क्रैब एप्पल्स। क्रैब एप्पल्स का हो गया जो फ्रूट्स विच आर फॉलन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू विंड, तेज हवा की वजह से पके हुए फल जो नीचे गिर जाते हैं, जंगली सेब जो है वो। इसके बाद है विंडफॉल, WINDFALL। ये बोल रहा है जो धरती पर गिर गए, तेज हवा के चलने की वजह से जो नीचे गिर गए हैं वो फ्रूट्स। ट्रिप है अब, TRIP। ट्रिप यहाँ मतलब है टू हिट समथिंग टू द फूड। ट्रिप हो जाते हैं ना, हम चलते चलते अटक गए और धड़ाम से गिर गए, वो। तो पेज नंबर 56 पर हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे पेज में जहाँ जहाँ ये मेंशन है।